Hi, good morning everyone. Today we will discuss our chapter 7 extra practice question. Extra practice question is the actually basically is a revision of full chapter 7 chapter. So that's why that is the importance of extra practice question. Instead of going exercise one by one, if we just concentrate on all the topics in one exercise, so that is your extra practice exercise. In other words, that is a revision of chapter 7, what you have done in the whole chapter 7 in different exercise. In your first question, there is a find the product of the following: ax plus 4, ax plus 9. If first term is same, second terms are different, we have direct formula like first term square plus addition of the other two terms and multiply with the first term, then what term you have to add it, that have to multiply. That is a plus b, that is in place of x, that is ax whole square. 4 plus 9 ax plus 4 into 9, that is your first identity we have done in your first exercise. So ax whole square is a square x square. 4 plus 9 13ax plus 4 into 9 is 36. Similarly, next is 4p plus 12, 4p minus 13. Now first term is same, second term is positive and negative. Add the second two terms, multiply with the first term and product of these two terms, that is first term square plus these two terms, added these two terms, multiply by first term, then multiply the two added terms. So 4p square give me 16p square minus 4p minus 156. Similarly 12 minus 4b, 9 minus 4b. And here if you saw the statement, 4b is written, first term is not common. So first, according to the identity, first term should be same. Then you shift like that, 4b, that becomes minus 4b plus 12, then 4b plus 9. So that gives you minus 4b. Now if you take negative sign common, so that becomes positive 4b, then minus 12. I told you, whenever you have to take common negative side outside, all the sides within the bracket will be changed. If it is negative, that changes to positive, positive changes to negative, because I have taken negative sign common outside. Now if you just keep side that negative sign, if you look at these term, now first term is same and second term AB terms has different signs. So just add the AB terms here, multiply with the first term, and here multiply the AB term. So 4b square give me 16b square, minus 12 plus 9 give me minus 3 4b, and 12 into 9 give me minus 108. Now after solving, 16b square minus 12b minus 108. Now negative sign was outside. When you open the bracket, all sign will be changed within the bracket. So minus 16b square plus 12b plus 108. So that was your first question. In this first question, you are using the identities which you have already done in your first exercise. Okay, now next is your second question. Multiply the following expression. You have same expression is given to you and you have to use the identity a minus b and a plus b, that is a square minus b square. अगर आपके पास आइडेंटिटी यूज़ हो रही है a माइनस बी a प्लस बी, तो आप डायरेक्टली a स्क्र माइनस बी स्क्र अप्लाई कर सकते हो. सिमिलरली 6x माइनस 1, 6x प्लस 1, 6x whole square minus 1 square, that is a square minus b square identity, that give me 36x square, because 6x whole square is 2. It means 6 square and x square will go separately, is equal to 36x square minus 1. Similarly 4x minus 5y, 4x minus 5y. Here both terms are same. So what I will do, I will apply the, either I apply the identity same as it I apply in question number 1, or if same term is there, or either can apply the square and apply a minus b whole square formula. If I apply the identity here, first term is same, first term square, add the next two terms, multiply with the first term and multiply the added term.
4x whole square 16x square minus 40xy plus 25y square. Similarly, a minus b and a plus b form. Again it is there, 2x square minus 3y square, 2x square plus 3y square. Here first term is 2x square whole square minus 3y square whole square. So that is again a square minus b square formula. In place of a there is 2x square and in place of b there is 3y square. When you multiply 2x square 2 times, 2 multiplied by 2 give me 4, and x square multiply x square, 2 multiplied by 2 give me x4. Similarly 9y4. Next is question number 3. You have to use the identity again a square minus b square to calculate this one. If 51 into 49 square, 51 into 49, what you have to do, I write 51 as 50 plus 1 and 49 as 50 minus 1. Again it is a plus b, a minus b, a square minus b square. When you apply, you get the value 2499. Similarly 102 into 98, 100 plus 2, 100 minus 2. Again a square minus b square, give me answer 9996. 148 into 152, 150 minus 2 give me 148, 150 plus 2 give me 152, a square minus b square. When you calculate, you get the value 22,496. Now in your fourth question, you have some question is given, you have to use the identity a plus b whole square, that is a square plus 2ab plus b square. I directly apply the formula here, like 2 by 7 p plus 1 by 5 q whole square. If you apply a plus b whole square formula, a square plus b square plus 2ab, we get the value 4 by 49 p square plus 1 by 25 q square plus 4 by 35 pq. Similarly, root 7 k by 2 plus 5 whole square, a square plus b square plus 2ab, give me, when root 7 multiplied by 2 times, root will be cancelled, only 7 is left, k square and 2 square is 4. So here 2 is cancelled, 5 root 7 is there and 5 square is 25. So that is my required answer. Similarly 5 root 2 a by 5 plus b square by 7. So these two terms are multiplied inside the bracket and outside this curly bracket whole power is 2. That means first when you open the bracket, so 5 root 2 separately goes with the square power and a by 5 plus b square by 7 separately goes with the power square. Here you apply a plus b whole square formula. This is a term, this is b term. A by 5 whole square, a square plus b square plus 2ab. And here 5 and root 2 both will be individually multiplied 2 times. When you multiply 5 2 times, 5 into 5 gives you 25 and root 2 multiplied by root 2. Root 2 will be cancelled, only 2 is left. 25 into 2 gives me 50. And here a square by 25 b4, because b square was there and b square when multiplied 2 times b4, because power will be multiplied with each other. 7 square 49 and here 2ab square by 35 is left. Now 50 multiplied by all the terms when you open the bracket, and your required answer is 2a square 50 b4 by 49 plus 20 by 7 ab square. Next is, in your fifth question, you have to directly apply the identity a minus b whole square. Here 6ab minus 13a square plus b square minus 2ab. So that is your required answer. Similarly, another part, b and c, root 12a minus 4 whole square, a square plus b square minus 2ab. I directly apply the formula here. Whatever in place of a term is written, that is your first term square. Second term square minus 2 times first term multiplied by second term. And when you multiply here, root 12, when multiply root term 2 times, root will be cancelled, only term is left, 12a square, 4 square 16. Here when you factor the root 12, that is 2 into 2 into 3, 2 taken out common and only root 3 is left, and 12a square plus 16 minus 16 root 3 is my required answer. Similarly 2 by 9 p square my 1 by 12 q square whole square. Again I apply the a minus b whole square formula, a square plus b square minus 2ab.
So that gives me 4 by 81 P4 plus 1 by 44 Q4 minus 1 by 27 P square Q square. Now in your sixth question, you have to apply same identities, a plus b whole square, a minus b whole square, but you have to find the values. If you have to find the value 148 two times, instead of spending time on multiplication, if we use the identity here, like 148 should be written as 150 minus 2. Again, a minus b whole square formula, a square plus b square minus 2ab. So your required answer is 21904. Similarly, if it is written 72.5, 70 plus 2.5, again a plus b form, a plus b whole square formula, a square plus b square plus 2ab. After calculation gave me 5256.25. Now if I have a question 128.5 whole square, so I have two ways to solve. It's our choice whether you are use the identity a plus b whole square or a minus b whole square. It's up to you. Here I solve with both the ways. Both the ways means if you want to go with the a plus b whole square, so answer will be same, there will be no change in the answer. Or if you are going to apply a minus b whole square in this question, so again your answer will be same, so there will be no change. That is, choice is yours, which identity you are going to use, a plus b whole square or a minus b whole square. 120 plus 8.5 whole square, a plus b whole square formula applied here, I got the value 16512.25. and similarly if I have to go with a minus b, so that means if 130 minus 1.5 give me same value 128.5. ultimately what happened, 128.5 we get the values two ways. Either I can add 8.5 in 120 or I then can subtract 1.5 from 130. I get the same value 128.5. Here I apply a minus b whole square formula, a square plus b square minus 2ab, and my required answer is same, that is I applied in the above a plus b whole square formula. In your seventh question, you have given the value x plus y. X plus y value is given to you 10 and xy value is given to 9. You have to find the value of x square plus y square. Now you have to think about the number in which equation these two values is come. So that is only a plus b whole square. So I just pick this equation, x plus y is equal to 10, squaring both sides. So that is x. Here I apply in the left side a plus b whole square formula, x square plus y square plus 2ab, and 100 square gives me 100, because when you are going to take squaring both sides, that means left hand side separately square and right hand side separately square. So whatever value is given to me, xy value is given to me, that is 9. I just replace xy with 9 and I have no value of x square plus y square, that I have to find. And 2 into 9 give me 18. When 18 goes on another side, 100 minus 18 give me 82. That means my x square plus y square value is 82. So next is now this is trinomials, square of trinomials. You have to use a suitable identity. I told you that time, whenever a plus b plus c term is given to you, whole square, a plus b plus c whole square term is given to you, always remember one formula, a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. So in place of a there is 3p, in place of b there is 7q, and in place of c there is 8r. So you just apply the direct formula, a square plus b square plus c square plus 2ab, 2bc and 2ca. So whatever term is written in place of a, b, c, you just replace in the formula and calculate. So that is your required answer. 3p whole square give me 9p square, 7q square give me 49q square, then 8r square 64r square, 6 into 7 42pq, 112qr and 48pr. Similarly in another same question also, first if negative sign is there, don't bother about we have to learn different formula. Only one formula you have to concentrate, a plus b plus c. First convert this negative into this way. Convert this expression into a plus b plus c form, and this negative sign accompany with the
दैट टर्म, जो भी टर्म के पहले नेगेटिव साइन दिया उसके साथ उसको कंबाइन करके पुट इन द ब्रैकेट। नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब जब भी आपकी सी स्क्वायर की टर्म आएगी, आपने तो सी को कंबाइन करके नेगेटिव कर लिया, ओके। तो आपने जहाँ भी सी होगा आपके फॉर्मूले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो सी वाली टर्म आपने नेगेटिव ही लिखनी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ऑटोमेटिकली जो नेगेटिव साइन होगा पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करके आपके पास ऑटोमेटिकली फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टू नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब नेगेटिव को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आ गया। 9/16 ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई 25, सी स्क्वायर बाई 49, 3/10 ab माइनस 2/35 bc माइनस 3/14 ca। दैट इज माई रिक्वायर्ड आंसर। इन बोथ केसेज इफ यू लुक एट दिस वी कंसंट्रेट ओनली वन फॉर्मूला लाइक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। So instead of remembering different formula according to the sign, so concentrate only one formula, and whenever if negative sign is come to your in this trinomial question and you want to the square, first convert into a plus b plus c form, then apply a plus b plus c whole square formula. In your 9th question you have two terms is given, you have to find the HCF। अब HCF निकालना कैसे है, मैंने आपको तब भी बोला था अगर आपके पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म्स हैं, ओके, सबसे पहले आपने न्यूमेरिकल पार्ट का HCF अलग से निकालना है, फिर वेरिएबल पार्ट का अलग से निकालना है। अब जैसे यहाँ पे था 6 और 36 का HCF, तो मेरे पास 6 आ गया। अब अगर मुझे ए स्क्वायर बी और बी स्क्वायर का देखना है तो मैंने आपको बोला था सबसे पहले तो वेरिएबल नोट कर लेने की कॉमन वेरिएबल कौन सी है। जैसे इसमें कॉमन वेरिएबल था बी, ओके। फिर आपने उस वेरिएबल की लोएस्ट पावर देखनी है कि इनमें लोएस्ट पावर कौन सी है। लोएस्ट पावर 1 है, तो ये मेरा HCF आ गया b⁻1, और 6 मेरा न्यूमेरिकल HCF था, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरी इन टर्म्स का HCF आ गया। अब जैसे आपका नेक्स्ट है 46x²yz 115x³ 207x⁻10। अब यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो आप, डिवीज़न मेथड से भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। अल्टीमेटली हमें तो निकालना है HCF। यहाँ पे जैसे मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन की, 46 के फैक्टर आगे 223, 115 के आगे 523 एंड 207 के आगे 3323। So when I mark there, so I found that 23 is common. So what does it mean? 46, 115, 207, HCF is 23। अब आ जाओ आपके वेरिएबल पार्ट पे। तो इसको हम दो तरह से कर सकते हैं वेरिएबल पार्ट को, या तो आप इनको पूरे फैक्टर्स में खोल दो, ओके, और जो कॉमन है उसको अंडरलाइन करके आप HCF निकाल लो। और दूसरा मेथड क्या है कि आप इनमें से x² yz xy x, पहले देखो कि इनमें कॉमन वेरिएबल कौन सा है। जैसे x मेरा कॉमन वेरिएबल है, अब देखना है कि जो मेरा x कॉमन है उसकी लोएस्ट पावर क्या है, उसकी लोएस्ट पावर 2 है, तो x² मेरा HCF आ जाएगा। चाहो तो आप इस तरह से फाइंड आउट कर लो, चाहो तो आप फैक्टर्स में मल्टीप्लाई करके कर लो। सिमिलरली आपके पास नेक्स्ट है, अब आपके पास एक्सप्रेशन आ गया, आपने इसको फैक्टराइज करना है। जैसे 27x³ एंड 93x³ 4। इसको भी दो तरह से कर सकते हो, अलग अलग न्यूमेरिकल पार्ट का HCF ले लो, वेरिएबल पार्ट का HCF ले लो, और इन दोनों टर्म में से वो टर्म कॉमन निकाल लो जो इन दोनों का HCF होगा। क्योंकि जब भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं इस तरह की टर्म को, तो HCF मेरा बेसिकली कहाँ पे यूज़ होता है, HCF बेसिकली यूज़ होता है इन दोनों का कॉमन फैक्टर निकाल के, उसको अगर बाहर कॉमन निकाल लिया जाए तो जो अंदर टर्म रह जाती है तो वो मेरी एक फैक्टराइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट होती है। अब जैसे 2793 का जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन की तो मेरे पास HCF सिर्फ 3 आया, ओके। अब अगर मैं x³ और y और x³ 4 का HCF देखूंगी तो पहले तो देखूंगी कॉमन वेरिएबल कौन से हैं, xy। अब xy की लोएस्ट पावर क्या है, x की लोएस्ट पावर 3 है, y की लोएस्ट पावर क्या है 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों टर्म्स का मेरा HCF आ गया 3x³y। अब वही 3x³ आपने इन दोनों टर्म में से कॉमन निकाल लेना। जैसे यहाँ पे चाहो तो आप पूरे फैक्टर्स फॉर्म में लिख लो, 3 और x³ y कॉमन निकाला तो यहाँ पे रह गया 9
प्लस 31y³ जो टर्म आपकी सर्कल के अंडर नहीं आ रही वो आपने एज इट इज ही लिख देना है। अभी जैसे आपका नेक्स्ट बी पार्ट था वो भी इसी तरह से किया गया। तो आपके पास 2 मेथड्स हैं, चाहे तो उसको पूरा खोल लो, फिर देखो क्या क्या सब टर्म में कॉमन है उसको सर्कल कर दो, उसको बाहर लिख के जो टर्म रह जाती है वो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी। अदरवाइज़ दूसरा मेथड ये है कि क्योंकि यहाँ पे कई बार क्या होता है जैसे a⁻7 आ गया तो इसको बहुत बार लिखना पड़ता है, ओके, तो उसमें कन्फ्यूज़न भी हो सकती है कई बार। तो इसका ईजिएस्ट मेथड ये है कि न्यूमेरिकल पार्ट का जैसे HCF निकाला 7, फिर वेरिएबल पार्ट में आपने देखना कौन से वेरिएबल कॉमन आ रहे हैं, ए बी। अब आ गई उनकी पावर्स की बारी, फिर आपने देखना उन वेरिएबल में लोएस्ट पावर क्या है। ए की लोएस्ट पावर 2 है, बी की लोएस्ट पावर तीनों में 1 है, तो वही लोएस्ट पावर आपकी यहाँ पे बाहर आ जाएगी, वो HCF आ जाएगा। तो यहाँ से ये जजमेंट हुई कि आपने जो कॉमन लेना है इन दोनों टर्म्स में, इन तीनों टर्म्स में से जो कॉमन लेना है 7a²b। अब तीनों टर्म्स का HCF बन गया है 7a²b। अब 7a²b इन तीनों टर्म से कॉमन लेने के लिए क्या करोगे। अब ये देखो फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी क्या है आपकी सेम है, तो अगर ये सारी की सारी टर्म बाहर जाएगी तो यहाँ क्या रह जाएगा 1। अब यहाँ पे 21 है, अब 21 से अगर 7 को सेपरेट करोगे 7 3 are 21, तो यहाँ पे क्या रह गया 3, ओके। अब यहाँ पे a⁻³ है, b⁻7 है। अगर 3 में से मैंने 2 बाहर निकाल दिए तो कितना रह गया यहाँ पे a⁻1 और b⁻7 में से एक b बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे क्या रह गया 6। इसी तरह से मैंने अगर a⁻7 से 2 बाहर निकाला तो 7 - 2 क्या हो जाएगा 5 और 3 - 1 क्या हो जाएगा 2, क्योंकि b की पावर 1 बाहर निकाली है। और 49 7 × 7 और एक 7 बाहर चला गया, तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। सिमिलरली जो आपका अगला है -40 p² q4 -10 pq5 + 80 pq। अगर आपको इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रही है तो जनरली क्या होता है कि मेरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नेगेटिव टर्म कभी भी फर्स्ट टर्म नेगेटिव नहीं होती। तो एक और ईजीएस्ट वे है कि पहले ही आप नेगेटिव साइन कॉमन निकाल दो, तो आपके पास अंदर रह जाएगी ये पॉजिटिव टर्म, ये पॉजिटिव टर्म, ये नेगेटिव टर्म, ओके। तो इससे आपको कॉमन फैक्टर लेना ईजी हो जाएगा। यहाँ पे जैसे मैंने पहले उसको ओपन किया 80 को भी, क्योंकि मुझे -10 कॉमन लेना था, 10 सब में आ रहा है और नेगेटिव साइन भी कॉमन लेना था, तो इसको भी 80 को भी -10 × -8 के फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो जो कॉमन था वो बाहर निकाला, जो रह गया था उसको एज इट इज़ लिख दिया। और अदरवाइज यू कैन टेक द HCF of numerical and variable part and take it common, then according to that you can write the statement। जैसे आपने PQ कॉमन निकाला तो पहले आपने देख लेना कि P की कौन सी पावर कॉमन निकाली है, Q की कौन सी पावर कॉमन निकाली है। तो जो आपकी अंदर वाली टर्म्स आती है उसमें से एक PQ माइनस करके पावर सब आइडेंटिफाई कर देना आपने। नेक्स्ट है आपका 4x x + 13y 7 16x³ x + 13y² -28 x² x + 13। पहले तो HCF निकाला न्यूमेरिकल पार्ट का 4 16 28, इसका HCF आया 4। अब आ जाओ वेरिएबल पार्ट में। वेरिएबल पार्ट में 2 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, एक ब्रैकेट वाला और एक x, क्योंकि ब्रैकेट वाला कंबाइन 1 वेरिएबल कंसिडर करना है। तो x और x + 13y यूज़ हो रहा है, ये मेरा सेकंड वेरिएबल है और ये फर्स्ट वाला। अब देखना कि x की लोएस्ट पावर 1 है तो 1 आ गई, x + 13y की तीनों में से लोएस्ट पावर क्या है 2, तो 2 आ गया। तो इसका मतलब है कि ये टर्म मुझे कॉमन बाहर लेनी है और टोटल सभी टर्म का HCF आ गया 4x, क्योंकि ये 4 भी मल्टीप्लाई होगा 4x x + 13y²। अब जब आपने तीनों टर्म से 4x x + 13y² कॉमन लेनी है तो फर्स्ट वाली टर्म में तो 4x आपका बाहर चला गया, x + 13y की पावर 7 है तो आपने 2 बाहर निकाला तो 7 - 2, तो ये 2 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा x + 13y⁵, क्योंकि यहाँ पे 7 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 7 पावर थी तो यहाँ पे सिर्फ आपका बच गया 5, यहाँ पे आपका 5 बचा क्योंकि हमने 7 में से 2 माइनस कर दिया। x + 13y आपका बाहर कॉमन निकल गया तो यहाँ पे रह गया x + 13y⁵। अब आ जाओ नेक्स्ट टर्म, यहाँ पे 4 4 16 होते हैं, 16 में से 4 बाहर गया। अब x³ में से एक x बाहर गया तो 3 - 1 कितना रह गया 2। अब यहाँ पे पावर 2 थी तो ये सारी की सारी टर्म बाहर चलेगी तो यहाँ पे सिर्फ 4x के रह गया। अब रह गया 28 में
28 भी 4 के टेबल से डिविजिबल है, 4 7 are 28, 4 बाहर निकाला तो 7 रह गया। अब यहाँ पे x रेज़ टू पावर 5 थी तो मैंने सिर्फ एक x बाहर निकाला, तो जो बाहर निकाला पावर 1 को, कौन सी पावर आपने बाहर निकाली है वो इस पावर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5 - 1 आ गया 4, और आपने स्क्वायर बाहर निकाला था इस होल ब्रैकेट का, तो 5 - 2 आ गया 3। सो दैट इज़ माय रिक्वायर्ड आंसर। अब है आपका नेक्स्ट है आपका 11th क्वेश्चन, फैक्टराइज द यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। अगर आपका फर्स्ट का स्क्वायर और लास्ट का टर्म का स्क्वायर आता है और मिडल टर्म में आपका मल्टीप्लिकेशन आता है, तो आप इसको लिखोगे कैसे? सबसे पहले आपने क्या करना है, जो ईजीएस्ट वे है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लिख देना, सेकंड टर्म का स्क्वायर लिख देना, तो बीच में आपने 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म करके लिख देना। फिर आपने चेक करना है कि ये मल्टीप्लाई करके मेरा 24x बन रहा है। यस, 8 × 3 24x, तो आपने डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर देना है a + b होल स्क्वायर। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन है सेम, a + b होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म 2px होल स्क्वायर, लास्ट टर्म 1 स्क्वायर, और 2 इंटू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म। फिर आपने इसको चेक करके देखना कि मेरा 4px बनता है, अगर बनता है देन a + b होल स्क्वायर। सिमिलरली सी पार्ट एंड डी पार्ट में पहले आपने 3p कॉमन ले लिया क्योंकि वो एक्स्ट्रा था, तो p² + 8p + 16 आ गया। फिर ये p² बना, ये 4 का स्क्वायर बना, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म करके देखा, फिर चेक किया कि क्या मेरा 8p बनता है। यस, देन अप्लाई a + b होल स्क्वायर, दैट इज़ द ईजीएस्ट वे टू आइडेंटिफाई। सिमिलरली इसी तरह से मेरा अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो मैंने वही किया, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, लास्ट टर्म का स्क्वायर, बिकॉज 81t² इज़ 9t होल स्क्वायर एंड 16k² इज़ 4k होल स्क्वायर। तो 2 के साथ मैंने फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को, लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके चेक किया, क्या वो 72 बनता है, 72kt बनता है। यस, देन अप्लाई a - b, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, प्लस होगा तो आपका a + b होल स्क्वायर फॉर्मूला। यहाँ पे आपकी थोड़ा स्टेटमेंट थोड़ी गलत लिखी क्वेश्चन में, यहाँ पे 2mx² आएगा क्योंकि x² कॉमन है सभी टर्म्स में। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म स्क्वायर, लास्ट टर्म स्क्वायर, और फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके 2 के साथ मल्टीप्लाई करके चेक करना है, इज इट 2mx²? यस, a + b होल स्क्वायर फॉर्मूला। सिमिलरली इन योर क्वेश्चन 12 में आपने फैक्टराइजेशन करनी है। ये आपका मिडल टर्म स्प्लिट मेथड है। ये जो आपका कंसेप्ट था, इसमें आपने सबसे पहले उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है, नेगेटिव को कंपनी कर देन लास्ट टर्म। अब आपने यहाँ पे बीच वाली टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है कि उसको ऐड करने पर 2 टर्म्स ऐसी लेनी है कि उनको ऐड करने पर -6 आए और मल्टीप्लाई करने पर 8 आए। तो ऐसी दोनों को सेटिस्फाई करेगी, वो यही है -4 - 2, क्योंकि ऐड करने पर -6 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर +8। देन यू सेपरेट द टर्म एंड मेक द फैक्टर। सिमिलरली x² - 3x + 2, फर्स्ट कन्वर्ट ऑल नेगेटिव टर्म इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म को जो भी न्यूमेरिकल पार्ट है उसके साथ ज्वाइन कर देना विद इन ब्रैकेट। अब मुझे ऐसी टर्म चाहिए ऐड करने पर -3 आए और मल्टीप्लाई करने पर +2, दैट इज़ ओनली -2 एंड -1, और -2 और -1 को मल्टीप्लाई करने पर +2 आती है। फिर आपने फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन लेना है और लास्ट 2 टर्म से कॉमन लेके फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। अब अगर आपका फर्स्ट टर्म नेगेटिव आ जाए, तो मैंने आपको बोला था फर्स्ट टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं लेनी, पहले आपने नेगेटिव साइन कॉमन ले लेना। जैसे ही आप कॉमन लोगे, ब्रैकेट के सारे साइन, ये टर्म सारी ब्रैकेट में चली जाएगी, इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि मैंने नेगेटिव बाहर ले लिया, पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। अब आपने इसको पॉजिटिव में चेंज करना है, -8 और 15। -8 की जगह कोई ऐसी दोनों टर्म्स लेनी है जिनको ऐड करने पर -8 आए और मल्टीप्लाई करने पर -15, दैट इज़ ओनली -5 -3। देन यू हैव टू सेपरेट एंड मेक द फैक्टर। और जब आपके फैक्टर्स बन जाए, फिर जो नेगेटिव साइन है, अब यहाँ पे 2 फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे कोई पॉजिटिव साइन नहीं है बीच में, 2 फैक्टर्स के बीच में, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि नेगेटिव साइन दोनों में से किसी एक ब्रैकेट वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि पहले क्या होता था, नेगेटिव साइन बाहर होता था, ब्रैकेट में कोई फैक्टर्स मल्टीप्लिकेशन नहीं होती थी, डिफरेंट टर्म्स होती थी, तो आप साइन चेंज कर देते थे। यहाँ पे सिर्फ दोनों में से कोई भी एक ब्रैकेट में आप नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करके साइन चेंज कर सकते हो, पर दोनों में नहीं करना। तो जैसे आपकी x - 5 थी, तो नेगेटिव साइन पहले फर्स्ट वाली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 5 -
एक्स, तो सिर्फ एक ही ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि वो भी इसका पार्ट है। अगर आप दोनों के साथ ट्राई करोगे दैट विल बी योर रॉन्ग, बिकॉज दोनों टर्म आपकी मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर यहाँ पे सपोज दोनों के बीच में प्लस होता तब नेगेटिव साइन सभी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होना था, बट जब दो टर्म अंदर मल्टीप्लाई हो रही हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो नेगेटिव साइन सिर्फ एक ब्रैकेट वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली a square plus 19a minus 20, same method, middle term write in such a way that is the addition, so you have to think about two numbers when you add, that gives you middle term, and multiplication give you the last term. Similarly you have to find the factor x square minus 23x minus 108, so you have to think about the number to make the factors like that. Similarly here, now your H part is same way you have to do. Now your 13 question you have to simplify. Here what will you do? 27x8 y8 divide by minus 9x6 y4. When you divide 9 3s are 27 minus 3 x8 minus 6 y8 minus 4 give you minus 3 x square and y square. Similarly when you go with other division method, one thing you remember, बिफोर डिवाइडिंग इफ़ यू मेक द फैक्टर, हर एक टर्म के आप अलग अलग फैक्टर्स बना लोगे तो आपको डिवाइड, कॉमन टर्म्स को डिवाइड करना ईजी हो जाएगा। इसी तरह से सारी टर्म्स को डिवाइड किया और जो कॉमन टर्म विदाउट जो कैंसिल नहीं हुई दैट विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। सिमिलरली इन 14 क्वेश्चन में क्या था, आपको 3 रेक्टेंगल्स गिवन थी अलग अलग फिगर में ए बी सी पार्ट में। जो फर्स्ट पार्ट में जो आपकी रेक्टेंगल थी उसमें आपको लेंथ और एरिया गिवन था, ब्रेथ निकालनी थी। ब्रेथ का फॉर्मूला है एरिया डिवाइड बाय लेंथ। अब जब आपने एरिया डिवाइड बाय लेंथ करना है तो एरिया में आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन है एंड एक इक्वेशन आपका लीनियर फैक्टर जो है लीनियर इक्वेशन वो डिनोमिनेटर में है। तो अभी आपने डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना, सिर्फ जो अभी हम पीछे फैक्टराइजेशन करते आ रहे हैं, ऊपर अब आपकी न्यूमरेटर में इक्वेशन आ गई, उसको फैक्टर्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे आपके फैक्टर्स बन गए फिर आपने देखना है, फैक्टर का मतलब है कि सारी टर्म्स मल्टीप्लाई होनी चाहिए, बीच में पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। दो टर्म जो मल्टीप्लाई हो रही हैं ब्रैकेट में होनी चाहिए। अब इसमें देखना कि कौन सी टर्म कॉमन है, a माइनस 3। अगर ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है डायरेक्टली कैंसिल a माइनस 3 एंड 3a प्लस 4 इज़ योर ब्रेथ इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरह से आपका जो ये वाला बी पार्ट था आपको लेंथ निकालनी थी, तो एरिया को ब्रेथ जो आपको b-2 गिवन है वो डिवाइड किया, ऊपर वाली टर्म्स के सिर्फ पॉलिनोमियल के फैक्टर्स बना के आपने सेपरेट किया, b-5 कॉमन टर्म कैंसिल की, द लेंथ इज ए रिक्वायर्ड आंसर। सिमिलरली इन द सी पार्ट ऑल्सो यू हैव टू फाइंड द ब्रेथ, एरिया डिवाइड बाय लेंथ, make the factors of the numerator, you will get c plus 8 c-2 and c-2 divided by c-2 give you c plus 8. Now in your question number 15 you have to calculate the value. अगर आप इसको ध्यान से न्यूमरेटर को देखोगे तो ये दो टर्म सेम मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये दोनों सेम मल्टीप्लाई हो रही हैं। इसको मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में ले लिया और मेरे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला था a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो जब मैंने यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी अप्लाई किया तो पीछे वाली एक टर्म कैंसिल हो गई, सिर्फ 1.73 प्लस 0.27 बचा, इसको कैलकुलेट करके आया 2। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 16, आपको लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना है। इसमें भी आपको क्या करना है, अगर आपको एक पॉलिनोमियल इक्वेशन न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में है, सबके फैक्टर्स बना लेने हैं और जो कॉमन फैक्टर होगा उसको कॉमन होगा वो कट कर देना और जो रह गया आपकी लोएस्ट फॉर्म होगी। अब यहाँ पे 3 कॉमन निकाला तो p प्लस 2 आ गया, p प्लस 2 कैंसिल हुआ, 1/3 इज माई रिक्वायर्ड आंसर। सिमिलरली z माइनस 3x स्क्वायर एंड नीचे वाली में 5 कॉमन निकाला, 5 माइनस 3x स्क्वायर आ गया। ओके z माइनस 3x स्क्वायर, 5 कॉमन निकाला, 5 3s are 15, z माइनस 3x स्क्वायर, ऊपर भी था z माइनस 3x स्क्वायर, कैंसिल हुआ तो सिर्फ 1/5 रह गया। अब ये वाली टर्म में ऊपर वाली टर्म में 3 कॉमन है, नीचे वाली टर्म में 7 कॉमन है। 3 और 7 कॉमन निकाला तो p-1 कैंसिल, 3/7 इज माई रिक्वायर्ड आंसर। अब ऊपर वाली टर्म में यहाँ पे 2t आपने कॉमन लिया, नीचे वाली टर्म में 3t स्क्वायर, 1 - 4t कैंसिल विद ईच अदर, 2/3 और t ऊपर एक 1 था नीचे 2 था, 1 - 2 t रेज़ टू पावर -1 और नेगेटिव को पॉजिटिव बनाएंगे तो ये t रेसिप्रोकल में चला जाएगा डिनोमिनेटर में, 2/3 t इज़ माई रिक्वायर्ड आंसर। सिमिलरली इन
ई पार्ट 3s माइनस 6 होल स्क्वायर में 3 कॉमन लिया, पहले विद इन द ब्रैकेट s माइनस 2 आ गया। अब 3 को सेपरेटली 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, s माइनस 2 को सेपरेटली, कॉमन फैक्टर्स कैंसिल होने के बाद दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सिमिलरली p माइनस 9 अगर न्यूमिनेटर में था, p स्क्वायर माइनस 8p माइनस 9। अल्टीमेटली क्या करना है कि जो भी आपकी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होगी अलजेब्रिक फॉर्म में, उसको आपने फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है जो ऑलरेडी रूल्स आप कर चुके हो। जैसे माइनस 8 था, माइनस 8 को ऐसी 2 टर्म्स लेनी है कि ऐड करने पर माइनस 8 आए और मल्टीप्लाई करने पर माइनस 9। सो दैट इज ओनली 2 टर्म, माइनस 1 प्लस 1 एंड माइनस 9 इंटू 1। सो दैट गिव्स यू रिक्वायर्ड फैक्टर p माइनस क्यू, p प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन p प्लस 1। नाउ इज योर लास्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन में इसको डिवाइड करना है। प्रोसीजर आपका वही है, इस वाले एक्सप्रेशन के कॉमन फैक्टर्स निकाले x माइनस 3, इसमें से 2 कॉमन निकाला x माइनस 3, 2 6 12, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, टर्म रेसिप्रोकल होगी, x माइनस 3 कैंसिल, 2 3 are 6, 2 2 are 4। अल्टीमेटली माई रिक्वायर्ड आंसर है 3x बाई 2। सिमिलरली अगर यहाँ पे 3x4 माइनस 9x स्क्वायर है, पहले तो आपने 3 कॉमन निकाल लिया, x4 माइनस 3x स्क्वायर आ गया, बिकॉज 3 3 9 होता है। उसके बाद देखा कि x स्क्वायर भी कॉमन है, तो x स्क्वायर भी कॉमन निकाला, तो यहाँ पे बन गया x स्क्वायर माइनस 3। नीचे वाली टर्म x रेज़ टू पावर 4 माइनस 9 है, तो x4 को मैं x रेज़ टू पावर 2 का होल स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, इसको वापस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो मेरा फॉर्मूला अप्लाई करना है a प्लस बी एंड a माइनस बी, जैसे x स्क्वायर माइनस 3 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास सिर्फ यहाँ पे टर्म बची 3x स्क्वायर बाई x स्क्वायर प्लस 3 एंड माइनस 2 जो मेरी सेपरेट थी। अब मुझे एलसीएम लेना है x स्क्वायर प्लस 3, जिसके लिए मुझे इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को x स्क्वायर प्लस 3 से मल्टीप्लाई करना है। x स्क्वायर प्लस 3 कॉमन लिया, अब जब माइनस 2 है तो इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर एंड माइनस प्लस माइनस 6, 3x स्क्वायर माइनस 2x गिव मी x स्क्वायर माइनस 6 एंड x स्क्वायर प्लस 3 इज़ माई रिक्वायर्ड आंसर इन द डिनोमिनेटर। अब है अगर आपकी थोड़ी बड़ी टर्म आ जाए कि ये दोनों डिफरेंट 4 टाइप्स की टर्म है, डिवाइड साइन करना है, पहले तो आपने इनको x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 के फैक्टर्स कन्वर्ट किए, x माइनस 3 x प्लस 2, 2x माइनस 10 के आगे 2x माइनस 5, 2x प्लस 4 के 2x प्लस 2, 3x माइनस 15 के 3 कॉमन लिया, जस्ट कॉमन लेना है, वो आपके फैक्टर्स बन जाएंगे 3x माइनस 5। अब आपने जो यहाँ पे टर्म्स थी, जो आपके फैक्टर्स निकले वो अप्लाई कर देना, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, तो ये टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगी। कॉमन फैक्टर जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में होंगे कैंसिल करने के बाद मेरे पास बचा 3 इंटू एक्स माइनस 3 बाई 4। थैंक यू, हैव अ नाइस